Hello dear students, welcome to today's class. So children, five chapters we have completed in social science. Yes, in total you have 15 chapters. So in the first half of your classes that has been going on, first half of your session, this is a good pace. ठीक स्पीड में चल रहे हैं हम लोग, not a problem. And 5 chapters means 2 chapters in history. 2 chapters in history completion is good. Big chapters are there. You'll be getting a lot of time to revise. 1 chapter geography, political science, economics. 1 chapter in each. While we are going through these, children, please understand some chapters are there that are meant for internal assessment only. खाली internally assess होगा, externally we are not assessing it. Externally means it's not a part of the board, it's not coming in the board. Are you understanding? So while understanding this and while going through this, what is more important is that first chapter, second chapter, because we are starting with the second chapter in political science, that is federalism. इसको हमको पहले ही करना था. We should have done it along with the first chapter because actually it's related with the first chapter, political science. So when we are talking of the first chapter in political science, we really mean that power sharing जो हमने किया, where we discussed in detail the example of Belgium and Sri Lanka. When we discuss the example of these two big countries and the type of administration that was being carried on in these countries, we came to know it very clearly. बहुत ही आराम से हम इस चीज को समझ रहे हैं. We are understanding that power sharing is very important. Belgium में such a nice arrangement has been made due to which the problem in Belgium was sorted out in a very subtle manner. बहुत आराम से problem काफी बड़ी थी. Problem was a big one, but then it was solved in a very good manner. श्रीलंका में ये नहीं हुआ. Actually it did not happen in Sri Lanka. श्रीलंका में वो लड़ गए और लड़के बहुत सारे लोग मर गए. I'm explaining it in simple. Got it? This is what, because the kind of accommodation that was practiced in Belgium, somewhere it was missing in Sri Lanka. Sri Lanka where there was domination of the majority by of the minority by the majority. ठीक है, सिन्हालाज ने तमिल्स को बिल्कुल दबा के रखने की कोशिश की. एज अ रिजल्ट कितना बड़ा क्लैश हुआ एंड कितने लोग मारे गए. वेरी एविडेंट एंड समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैड बीन मेड, इट वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव द पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट. प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा पहले से पढ़ना पड़ेगा. फर्स्ट चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम was made to reduce the power of central government and give it to state government. थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करने की जरूरत पड़ी, बिकॉज वहां पे देयर वाज मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी का कुछ कॉन्सेप्ट था. सेंटर में देयर वाज मेजॉरिटी, होल कंट्री में माइनॉरिटी, सेंटर में माइनॉरिटी, होल कंट्री में मेजॉरिटी. सो दिस वे दिस वाज द स्टोरी. रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड. बेल्जियम में पहले भी रीजनल गवर्नमेंट थे, ऐसा नहीं था, लेकिन दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स. अपने अपने इनके काम थे. And they had, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. The state government had power
in Belgium, but more power was with central government. तो क्या होता है, when this kind of a situation is there, then there is tussle. फिर क्या होता है ना, थोड़ी सी जो है टेंशन होने लगती है कि उनको ज्यादा पावर मिला है, हमको कम पावर मिला है, हमको भी ज्यादा पावर मिलना चाहिए. वी कैन नॉट बी ऑलवेज डोमिनेटेड बाय द सेंटर. So 1993 में there was a change that regional governments were given constitutional power and they were no longer dependent on the central government. In 1993, याद रखना, ये डेट याद रखना, प्लीज रिमेंबर द डेट. There was a change and more power was given to रीजनल गवर्नमेंट. वहां पे रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट. हमारे यहाँ पे जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहते, रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं. नाउ दे वर नो मोर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. हर एक चीज के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाना है. सो बेल्जियम फ्रॉम अ यूनिटरी सिस्टम इट शिफ्टेड टू फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. Belgium shifted from unitary system to federal system. कब हुआ ये? When did it happen? Actually it happened in 1993. Please remember this major change had happened and it had happened in 1993. Sri Lanka आज भी for all practical purpose यूनिटरी सिस्टम ही है जहां पे कि नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स. तमिल लीडर्स वांटेड इट टू बिकम अ यूनिटरी फेडरल सिस्टम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. गॉट इट? इन श्रीलंका still major power lies with सेंट्रल गवर्नमेंट. ज्यादा पावर आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जिसके वजह से कि बीच बीच में टेंशन्स होती हैं. एंड अब ये समझो, बार बार देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस बुक. सबसे पहले चैप्टर में, in the first chapter, what we have discussed is we have discussed the example of Belgium and Sri Lanka. So when we have discussed the example of Belgium and Sri Lanka, we need to understand that the kind of system that existed in Belgium and Sri Lanka, the same example will be quoted in many chapters. बहुत सारे chapters में हमको बेल्जियम और श्रीलंका के example discuss करना है. Believe me children. इसलिए बेल्जियम एंड श्रीलंका का एग्जाम्पल नीड्स टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. बिल्कुल इसको थोड़ा सा साफ रखिएगा. एंड व्हाट एक्चुअली इज फेडरलिज्म? एक एक्सप्लेनेशन विच इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर 1 मार्क. हाउ डू यू एक्सप्लेन फेडरलिज्म? दिस यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर 1 मार्क. What is federalism? I'm sorry. So this थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा. It is a system of government. So it is a system of government where power is divided. Power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Divided between a central authority and various
constituent units of the country. और देखो खाली everything cannot be centralized. सारी चीजें सेंट्रलाइज नहीं है, ये नहीं कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही सारा पावर है और स्टेट्स जो है हर एक चीज के लिए सेंटर पे डिपेंडेंट है. फेडरेशन में 2 levels of government is there. Major feature is that फेडरेशन में टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, बट नाउ दिस इज इन डिटेल एंड इट हैज टू बी फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग रहेगा. इट इज सेंट्रल एंड स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में ही है. एक गवर्नमेंट है जो कि पूरी कंट्री के लिए, विच इज फॉर द एंटायर कंट्री, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स. नेशनल इंटरेस्ट के लिए फ्यू कुछ एरियाज जो है, इट इज एक्सक्लूसिवली मेंट विद द सेंटर वेयर दिस इज फॉर एंटायर कंट्री. Okay, and other is that at the level of province or state that look after much of the day-to-day administering of the state. Day-to-day administering of the state. Central government is providing all the help to the state governments in this corona era. I am giving you the example of corona era because this is the most ample example, I mean most valid example that we can discuss nowadays. Central government has to provide all the help to the state governments during this crisis era. ऑक्सीजन से लेके हॉस्पिटल फैसिलिटी से लेके डॉक्टर से लेके बेड से लेके सारा कुछ जो है वो इट इज डिपेंडेंट ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट्स अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं दे आर डूइंग इट. स्टेट्स आर टेकिंग द डिसीजंस ऑन देयर ओन एंड बोथ दिस लेवल्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट. एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. बोथ दिस लेवल्स हैव देयर ओन पावर. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हम और आप नहीं कह रहे हैं. फेडरलिज्म वाला एक्सप्लेनेशन 1 मार्क के लिए याद कर लेना. प्लीज डू रिमेंबर इट फॉर 1 मार्क. नोट इट डाउन समवेयर. सो फेडरेशन इज कॉन्ट्रास्टेड मतलब उल्टा है टू यूनिटरी गवर्नमेंट. वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट है एंड इसमें क्या होता है यूनिटरी सिस्टम में देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. देयर इज ओनली वन यूनिट ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, एक ही यूनिट है गवर्नमेंट का एंड सब यूनिट्स मतलब जो बाकी की जो स्टेट्स हैं सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. मेजर ऑर्डर्स जो आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से वही स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है और स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए रूल्स फॉलो करने हैं. यूनिटरी सिस्टम में दिस इज देयर. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. दिस इज द मेजर डिफरेंस. गॉट इट? इन द यूनिटरी सिस्टम द इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स to the
provinces. But can they? They cannot. But in state government cannot resist or revolt. But in federation दोनों को क्या काम करना है? What is the work that is to be done by the central government and what is to be done by the state government? Duties are segregated. किसको क्या करना है ये अच्छे से पता है. Duties of central and state government are segregated. अलग अलग है, दोनों की ड्यूटीज बिल्कुल अलग अलग है. एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन. इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है. ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कैन क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आस्क, थोड़ा बहुत स्टेट गवर्नमेंट इज देयर. लेकिन अभी जैसे कि लाइक द कंडीशन इन बंगाल एंड न्यू दिल्ली. बंगाल में देखो ममता की गवर्नमेंट है. इज शी बॉदर्ड व्हाट इज हैपनिंग इन द सेंटर? इज शी बॉदर्ड व्हाट आर द ऑर्डर्स इशूड बाय मोदी एंड द गवर्नमेंट? उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ता. शी मैनेजेस द थिंग्स ऑन हर ओन. शी फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ हर ओन. उनको पता है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हो रहा है. Whatever decisions she wants, she can take for her state. Center cannot interfere in that. लेकिन हाँ, अगर क्राइसिस आती है, then center has to help Bengal because Bengal is not away from India, ना? It is a part of India. So whichever government is there, center has to help them. Are you understanding? That is there. Both these governments are separately answerable to the people. सवाल जवाब तो दोनों के साथ ही हो सकता है. विद द सेंटर एंड द स्टेट, बोथ द लेवल्स. Both the levels are answerable to people. आम आदमी के लिए इनकी जवाबदेही बन रही है. स्टेट गवर्नमेंट, हम जिस स्टेट में रहते हैं वहां के स्टेट गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं. एंड हम जिस कंट्री में रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑफ कोर्स क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. हियर आई वुड लाइक टू मेंशन द एग्जांपल ऑफ द 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा the famine in China that had occurred. Democracy, when we were talking about the benefits of democracy, we understood that the Chinese government was unable to deal with the situation of famine and 3 crore people died. They were not answerable ना, अपनी मन से जो आ रहा था वो कर रहे थे. As a result, so many people perished. बहुत सारे लोग गायब हो गए. एंड की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जब हम डिस्कस करते हैं, देयर आर 2 or more लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. सो नाउ लेट्स डिस्कस. तो डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म इज गुड एंड अलग अलग अगर काम करते हैं तो आम आदमी का फायदा होता है. सेंटर से भी हमको हेल्प मिलती है, स्टेट से भी हेल्प मिलती है. बोथ द गवर्नमेंट्स keep on trying to prove themselves. वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं. That is there. Okay, so there are 2 or more level of government. 2 तरीके के गवर्नमेंट हैं एंड डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट. पहला तो these are the key features. बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फेडरलिज्म. प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स.
for 5 marks. Got it? तो ये आप टॉपिक जो है, दिस टॉपिक प्लीज डू प्रिपेयर इट फॉर 5 marks, where you are talking about the key features of federalism. 2 or more levels of government is there, and different tiers of government govern the same citizens. Different tiers of government govern the same citizens. एक ही कैटेगरी है, देयर इज वन कैटेगरी. मैं हूं, इफ आई एम स्टेइंग इन उत्तर प्रदेश, सो द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज ऑल्सो आंसरेबल टू माई क्वेश्चंस, एंड आई एम एन इंडियन, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो आंसरेबल बाय एनी टाइम, एंड बिकॉज आई हैव गॉट द RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन. दे हैव टू इन्फॉर्म मी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ईच tier has its own jurisdiction. Each tier has its own jurisdiction. Jurisdiction, their own areas in specific matters of. खास है, आपको लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको टैक्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, whom are you going to question? लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, who is answerable? And एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड some issue is there, where will you go? So आपको ये is easily it is mentioned, it is clearly segregated, so there is no question of any kind of a confusion. कहीं पे भी confusion का कोई चांस नहीं है. So each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है. हाउ द पीपल आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वेयर टू गो, इट इज क्लियरली मेंशन. सो की फीचर सेकंड इज दैट the people are governed by the citizens are the same, but state government and central government both are answerable to the people. This is the second and the most important feature of federalism. Okay, all these features you have to understand. Jurisdiction ka meaning is very clearly mentioned here, where it is the area over which someone has legal authority. Law, आप कानून, आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं. टैक्स से रिलेटेड धांधली हुई है, कहीं पे अनलॉफुल एक्टिविटी हैज हैपेंड, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट, एंड इट मे बी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और अदर काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर. आपकी बाउंड्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है और एनी काइंड ऑफ थिंग इज देयर, सो यू कैन अप्रोच द कोर्ट, दैट इज ज्यूरिस्डिक्शन. स्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टेट कोर्ट्स आर देयर. पहले तो लोकल कोर्ट में जाते हैं, लोकल कोर्ट में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, देन यू कैन गो टू द स्टेट कोर्ट्स, एंड इफ देयर ऑल्सो द प्रॉब्लम इज अनसॉल्व, देन यू कैन गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, देन ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल, किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड. Jurisdiction of respective levels or tiers of government are specified in the Constitution. Constitution में बहुत ही clearly it is mentioned, if you have some problem, which court you have to go, कौन सा एरिया,
किसके पास है, which is to be looked after by the center and which is to be looked after by the state. It is very clearly mentioned. So existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. Got it? Existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. मैंने बताया ना कि it is mentioned in the constitution, so very clearly it is clarified कि अगर problem होती है you have to go to which jurisdiction, that is there. Okay. Children, the world map is given here in your book, which is talking about the different forms of government that exist in the world. Federal system कहाँ पे है, where 2 tiers of government is there. We need to discuss it in the book itself. Map देखना पड़ेगा. So I need to go to the book. Come, let's see it in the book itself. So students, we are talking about federalism. We have started this chapter today, one of the very important chapters of your syllabus. So children, you can very well understand that the points that we are discussing, in these points we are talking about India, how the rules and regulations are framed in India, how do we follow it, what are the ways and methods in which we follow the Indian customs and traditions and Indian rules according to the constitution. हर जगह पे constitution की बात आ रही है. पहले भी मैंने आपको बताया है, I had already discussed it with you that children, you need to understand the points related to federalism. और आपको 2 tier गवर्नमेंट का सिस्टम समझना है. एंड द होल बुक, वेर एवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट some example, every time we are going to discuss about Belgium and श्रीलंका. तो फर्स्ट चैप्टर जो आपने किया है उसको बेटा याद रखिएगा. यू नीड टू रिमेंबर वॉट एवर वी हैव डन इन द फर्स्ट चैप्टर. गॉट इट? सो द central government and the state government and the distribution of power amongst them is what is federalism. ये चीज़ बहुत अच्छे से फॉलो ही एंड बेल्जियम में हुई. Especially this change had occurred in 1993. I had already told you. You need to remember this year. The regional government were given the constitutional powers. They were no longer dependent on the central government. बेल्जियम में क्या हुआ, देयर वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम फेडरल सिस्टम. हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में स्विच ओवर कर गए. बेल्जियम में पहले इट वॉज यूनिटरी. यूनिटरी में क्या होता है कि एवरी पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर. छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अक्सर क्लैशेस होते हैं आपस में, लेकिन अल्टीमेटली द पावरफुल वंस आर द सेंटर. नाउ ये देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं द फेडरल, जहाँ जहाँ पे रेड कलर है इट इज़ ऑल द फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम. यू कैन सी, हम एक साइड से शुरू करके, आई टोल्ड यू दैट आई नीडेड टू शो यू द मैप. जीके के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कनाडा में वी हैव अ फेडरल सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. देन यू वी हैव द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ देयर. वहाँ पे अच्छा, अभी ये भी देखो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बीच में सम प्लेसेस में वी डू नॉट हैव फेडरलिज्म. So this is the work that I am giving you. Please try to find out which kind of government exists in these places. Got it? ये देखो, एक माइक्रोनेशिया है यहाँ पे, छोटा सा कंट्री, आइलैंड countries there, and there also we have the federalism. Then we have the Brazil and Argentina. वहाँ पे भी we have federalism.
लेकिन ये यहाँ पे सम प्लेसेस आर देयर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन फेडरलिज्म। पता करना ये कौन सी कंट्रीज है। ओके, अफ्रीका तो आप देख लीजिए, जर्मनी में भी है फेडरलिज्म, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, ये बिग एरिया इज देयर। एंड ब्रिटेन में वी डू नॉट हैव फेडरलिज्म। जस्ट सी हियर इज ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है, यहाँ पे फेडरलिज्म नहीं है। यस चिल्ड्रन, ये तो आपको पता है, ये हमको भी पता है दैट वी आर फॉलोइंग द क्वींस रूल देयर। इंडिया में, पाकिस्तान में फेडरलिज्म है, नाइजीरिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया एंड देन रशिया। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू चिल्ड्रन। आगे हम आगे करते रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में विल बी अगेन कैरिंग ऑन चिल्ड्रन। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।